Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Manoj, and welcome, Udayan, to the program. A quick look at the headlines. Gross direct tax collection registers 20% growth for 2022-23 fiscal, stands at 19.68 lakh crore rupees. Inflation in India to ease to 5.2% in current fiscal as per World Bank report. And Brent crude climbs above $85 per barrel level. देश में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 20% बढ़कर 19,68,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति दर घटकर 5.2% पर आएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $85 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। Market Mantra. Market Mantra. We begin with our first story today. Gross direct tax collections for the financial year 2022-23 stood at 19.68 lakh crore rupees, registering a growth of over 20%. A provisional figure issued by the Ministry of Finance showed that the net collection for financial year 2022-23 stood at 16.61 lakh crore rupees, representing an increase of 17.63% as compared to the preceding financial year 21-22, which stood at 14.12 lakh crore rupees. Direct tax collections for financial year 22-23 also exceed the union budget estimates by 2.41 lakh crore rupees, a 16.97% increase. Budget estimates for direct tax revenue in the union budget for 2022-23 were fixed at 14.20 lakh crore rupees, which were revised, and the revised estimates RE were fixed at 16.50 lakh crore rupees. The ministry said that the gross corporate tax collection for 2022-23 is at 10,04,118 crore rupees and has shown a growth of 16.91% over the gross corporate tax collection of 8,58,849 crore rupees of the preceding year. In fact, the gross personal income tax collection, including STT, for 2022-23 is 9,60,764 crore rupees and has shown a growth of 24.23% over the gross personal income tax collection of 7,73,389 crore rupees of the preceding year. Meanwhile, refunds of 3,07,352 crore rupees have been issued in the year 22-23, showing an increase of 37.42% over the refunds of 2,23,658 crore rupees issued in the year 21-22. Udayan, we've seen all the tax figures all going up proportionately, reflecting. And you think this sudden increase over this last year, it's a spurt of an increase. Is COVID times are over? Yeah, absolutely. It's just reflecting the, shall we say, a more normal, within quotes, year where economic activity was back in action. People were earning, the companies were earning. So coming back on track is what's getting reflected. And the great part is it will help government sort of finance. Typically all governments run deficits.
So if you're in a better position, you're outdoing your estimates, then you are in a slightly better position. It's a much better position than the estimates, so Right. that's great. But what is very striking was the last part that you read out was about refunds, and I find that very interesting. That means a lot of people are filing for taxes, they're being assessed, and that whole process, which in the past used to take years, I mean, talking about say even 10, 15 years back, and that's just showing that when you digitize that whole process, where you're using Aadhaar, you're linking Aadhaar with PAN, and you've got this whole digitized process, how efficient that whole process is now. Refunds get issued, they come into your accounts as early as 15 days, 20 days. If say it's a youngster, or if it's a very senior citizen, you'll see that happening in a matter of couple of weeks, 2 or 3 weeks. So these are dramatic changes. It's not a lot of discussions get restricted to tax rates. Tax administration is also equally important. How you get that whole process going so that time doesn't get wasted, resources doesn't get wasted, both on the side of the government and people who have to comply with it. So it's a very heartening thing. So that to me, I know people would like to focus on somewhere else, but this is heartening. This is just showing what all you can achieve when you actually make the whole system more efficient through digitization. Right. यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे उदयन जी कि जो ये आंकड़े हैं इन पर हम यानी संतोष व्यक्त करें या उत्साह जताएं या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में यानी बहुत सारे जो सुधार हुए हैं, खासतौर से डिजिटाइजेशन के बाद, जैसे कह लें कि फेसलेस कर व्यवस्था में चेहरा विहीन जांच प्रणाली की शुरुआत हुई, इस तरह से कहां ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जिससे कर संग्रह में और बढ़ोतरी हो? देखिए, वो क्या हुआ है कि आपने पूरे तंत्र में ट्रांजैक्शंस में जितना आप उसको फॉर्मलाइज करें, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, उसकी जो रिपोर्टाज हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो रही है, वो बेहतर हो रही है. तो जो लूप होल्स हैं, ग्रे एरियाज है, दो स्टूल बिटवीन द स्टूल्स, जो गिरने वाली बात कहते हैं, फॉलिंग बिटवीन द स्टूल्स, वो वाली चीजें जब आप कम कर देंगे, बंद कर देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. और दूसरा ये है कि जब आप कॉन्टिन्यूअसली उसको एफिशिएंट कर देंगे, आप कंप्लायंस को आसान करेंगे, मतलब कोई कर प्रणाली में एक तो उसको आसान करना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे, डर ना लगे. और जहां पे कंप्लायंस इजी है, क्विक है, वहां पे आप देखेंगे वो कंप्लायंस वहां पे ज्यादा बेहतर होता है. और दूसरा है कि जितना हमारे इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है, होती चली जाएगी, वो बेहतर होता जाएगा. दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये तो एआई बहुत ही ज्यादा अब्यूज्ड वर्ड है आज की डेट में, हर जगह में इस्तेमाल हो रहा है, पर यहाँ पे भी है, आप यहाँ अवॉइड नहीं कर सकते. तो जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन आप डेटा जो आप संग्रह कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस करके आप बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. एक टैक्स पेयर का बिहेवियर, एक कंपनी के बिहेवियर, कंपनी के समूह के बिहेवियर, और आप कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं. तो डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होगा टैक्स इवेजन, टैक्स कंप्लायंस में. तो वो बेहतर होता चला जाएगा, इंप्रूव होता चला जाएगा. अभी तो हमने सिर्फ वो डेटा बैकबोन बनाया है, अब इसके बाद आप एनालिटिक्स जब लाएंगे तो वो बेहतर हो जाएगा. जहां तक बात है कि इससे संतोष हमें मिलना चाहिए, ये विंडिकेट कर रहा है, ये तो हमें जानते हैं. इसमें सरप्राइज हमें होना नहीं चाहिए था. जो सरप्राइजिंग होने वाली बात है वो एस्टिमेट से बेहतर हुआ है, उस पर हम संतोष कर सकते हैं. पर ये तो गाड़ी पीछे देख के हम नहीं चला सकते, रियर व्यू देख के. हमें तो विंड स्क्रीन से सामने का परिदृश्य देखना पड़ेगा. वहां मुद्दे अलग हैं. वहां पे आपकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, वहां पे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है, उसके हिसाब से लोग कर का हिसाब किताब रहेगा. पर अगर आप 6.6% से ऊपर परफॉर्म करते हैं, 6.3%, तो फिर आपका एक सम लेवल ऑफ टैक्स कलेक्शन तो होगा, और वो पिछले साल से बेहतर ही होगा. तो ये तो बिल्कुल, अगर हम मान के चलते हैं कि आर्थिक प्रगति होगी, तो टैक्स कलेक्शन तो बेहतर होगा ही. सवाल ये है कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो एम्बिशंस हैं, हम जो चाहते हैं करना, हमारे बुलंद जो हौसले हैं,
उसके हिसाब से वो मैच करता है कि नहीं, क्योंकि जब भी आपके रिसोर्सेज हमेशा कम होंगे तो उसमें कितनी हम समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितना गैप रहेगा उसको तो आपको बोरो करना पड़ेगा, या आप डिसइन्वेस्ट करें या एसेट सेल करें। बिल्कुल। तो वो एक सामंजस्य करके हमें करना पड़ेगा। पर ये मानना तो पड़ेगा। लोग तर्क कर सकते हैं कि आप डिसएग्री कर सकते हैं, पर यह मानना पड़ेगा कि कोविड का इतना बड़ा क्राइसिस गया है और हम ऐसे फिगर्स सामने लेके आ रहे हैं। सबसे जो कठोर भी आलोचक होगा उसको ये बात तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े सामने हैं। बिल्कुल, यानी हम संतोष नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों पर और अपने तंत्र पर अपना विश्वास बनाए रख सकते हैं कि हम बेहतर कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुद्रास्फीति इससे पिछले वित्त वर्ष के 6.6% की तुलना में घटकर 5.2% पर आ जाएगी। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में यह अनुमान भी व्यक्त किया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में देश के चालू खाते का घाटा भी इससे पूर्व वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 3% से घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% पर आ जाएगा। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2022 से लेकर अब तक मुद्रास्फीति घटाने के उपायों के तहत ब्याज दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। हालांकि विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बढ़ी ब्याज दर से ऋण लागत ऊंची होगी और घरेलू उपभोक्ता खपत घट सकती है, जिसका असर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में कमी के रूप में दिख सकता है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर में संशोधन करते हुए 6.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा पूर्वानुमान 6.4% के नजदीक है। वैश्विक और घरेलू कारण से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर एशियाई विकास बैंक ने भी इस अवधि के दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका और यूरोप के वित्तीय बाजारों में ताजा उथल-पुथल से भारत में लघु अवधि निवेश प्रवाह में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन भारतीय सेवा क्षेत्र का उछाल बाहरी आशंकाओं के लिए ढाल की तरह काम आ सकता है। उदिन, यहां पर विश्व बैंक के ताजा महंगाई घटने के अनुमान पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि जो वैश्विक चुनौतियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें लघु अवधि में या कह लें कि शॉर्ट टर्म के लिए जो निवेश में कमी का इशारा किया गया है, आगाह किया गया है, वह किस हद तक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है? देखिए, हमें कैपिटल की बहुत जरूरत है और विश्व के दूसरे देशों से जो आता है, इनफ्लो होता है, उसके ऊपर काफी कुछ दारोमदार टिका हुआ है। ऐसा नहीं कि हम डोमेस्टिकली जनरेट नहीं करते हैं, हमारे प्रोविडेंट फंड के पैसे लगते हैं, हमारे इंश्योरेंस जो जीवन बीमा और दूसरे बीमा कंपनियां पैसे लगाती हैं, आपके एनपीएस भी पैसे लगाती हैं, म्यूचुअल फंड्स पैसे लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, और साल दर साल इनका जो रोल है वो उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। पर ये काफी नहीं है, क्योंकि जिस दर्जे के निवेश के बारे में बात करें, जब आप सड़कें, पुलें, इस तरह के ग्रीन एनर्जी के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक बिल्कुल अलग होता है। तो उस हिसाब से अगर ये यहाँ पे विश्व में आर्थिक प्रेशर बना रहता है, हम पश्चिम के देशों के बारे में बात कर रहे हैं, उसका असर तो पड़ेगा। जैसे कि आप जो स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है उसमें तो पड़ रहा है और पड़ता रहेगा। तो कई जगह में है, वहां पे हो जाता है रिस्क ऑफ या रिस्क एवर्स या थोड़ा सा हटके रिलक्टेंट बिहेवियर तो आज आ तो जाता है। पर अगर आप डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान देखें निवेश का, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज का, जहां पे 6.3% है, वो तो हमेशा आपके टॉप 5 या टॉप 6 कंट्रीज में तो बना ही रहेगा। तो वो एक बात अपनी जगह है। पर हाँ, कहाँ पे वो निवेश होता है, हम क्या इमेज देते हैं,
हम रिफॉर्म्स के बारे में क्या इमेज देते हैं, हम किस तरीके से हमारे यहाँ पे मैन पावर का क्या सीन है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पर मैं कहता चलूं 5.2% अगर वर्ल्ड बैंक आपको मुद्रास्फीति का आंकड़ा बता रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक अंदाजा दूं कि अगर 10 साल के वर्ल्ड बैंक के मुद्रास्फीति के अगर फिगर देखें, अगर इस साल से पहले ये 5% के आसपास 10 ईयर एवरेज, ईयर ऑन ईयर क्यूमुलेटिव CAGR जो था वो 6.5% के आसपास था। अगर 5.2% है, आप सोचिए एक FD कितनी कमाती है साल में। तो आपका रियल रिटर्न जो है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, या तो बराबर होता चला जा रहा है या उसके पॉजिटिव हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो लैंडस्केप है वहां पे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आप फिर सडनली आप जो फिक्स्ड इनकम जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार इससे ज्यादा हम रिस्क क्यों लें। तो रिस्क रिटर्न का जो इक्वेशन है, जब इन्फ्लेशन गिरने लग जाता है तो वो लैंडस्केप बदलने लग जाता है। तब आप रिस्क तभी आप ज्यादा लेंगे तब अगर रिटर्न बेहतर हो और क्लैरिटी हो। तो ये 5.2% कोई ऐरा गैरा फिगर नहीं, ये गौरतलब है। Udhayan, you spoke of risk-return ratio, and I think helping us understand that when foreign capital comes in, when we take in international loans, there is also a level of emphasis and benefit given to a country, even in terms of funds coming into the market, in terms of how stable a company is, how stable a country is, how stable an economy is. And I think over the last tumultuous 3 or 4 years, it has been seen that there is volatility, but by and large, we've remained stable. And do you think that will definitely score brownie points for us when we look at the huge amount of money we are looking at for investing in our infrastructure? Well, absolutely. And you would have seen today in the newspapers, these are media reports, if they are to be believed, government is already pitching to the international rating agencies for an upgrade. Right. So government hasn't lost any time. Today we are sitting on what? We are sitting on 4th, I think, right? Right. And in just 4 days, the data is out. They're pitching for an upgrade. So they're making a case, and that also changes the narrative. See, one is about fundamentals. We keep talking about fundamentals, but a lot of the investment flows are based on trust and sentiments. Now, and that is the job across the world. Governments are doing that job, and then large companies are doing the job. So I think government is at work, and they're trying to change that narrative, and they're trying to do what you're actually are talking about. Right. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के एक ट्वीट का जवाब देते हुए ये बातें कही। एक ट्वीट में श्री राणे ने सूचित किया था कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के तहत SME क्षेत्र के ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को और नया रूप दिया गया है। यहाँ पर जो ये पूरा सेक्टर है वहां आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि किस रूप में इसका प्रदर्शन अब हमें देखने को मिल रहा है और आगे क्या आसार दिख रहे हैं। देखिए, जहां तक रोजगार के बारे में बात करें, GDP के हिस्से, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के बारे में MSME जो लघु उद्योग हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। देखिए मनोज, जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े जो उपक्रम हैं, वहां पे काफी हद तक ऑटोमेशन का जमाना आ गया है। आप रोबोटाइज कर रहे हैं प्रोसेस, जो चीजें हाथों से होती थी, अगर मॉनिटरिंग भी होती थी वो भी डिजिटाइज होके रोबोटिफिकेशन हो रहा है। तो जो आपके पास जब इतना लेबर है वो अब्जॉर्ब कहाँ होगा। तो इसलिए लघु और मध्यम लघु और बहुत ही जो माइक्रो जो एंटरप्राइज है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्रेडिट गारंटी का तो हमने देखा था पैंडेमिक के शुरुआती दौर से
कि वहाँ उसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। पर आगे चल के मनोज, मैं बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन डिजिटाइजेशन के बारे में दोबारा बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप जैसे एक मान लीजिए एक चाय वाला है, एक छोटे होटल वाला है जो खाना मुहैया करा रहा है, उसका एक पूरा बिहेवियर कैच हो रहा है वॉलेट से। अगर आप वॉलेट, डिजिटल वॉलेट यूज कर रहे हैं या ऑनलाइन आप बैंक, गूगल पे या जो भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पे कर रहे हैं, यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे एक ट्रेल बन रहा है। अभी तक क्या होता था कि आप कोलैटरल के बेसिस पे आपको लोन मिला करता था। अब वहां से क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन मिलता है, मैं आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहा था, अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे कैश फ्लो के बेसिस पे लोन मिलने के आसार बन गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया। आपको 2 साल या 3 साल का इंफॉर्मेशन आपके पास है कि हमारी इस बिल्डिंग के नीचे अगर जो चाय वाला चाय बेच रहा है, मान लीजिए, उसने 3 साल तक उसका रिकॉर्ड है कि उसको हर रोज इतने पैसे मिलते हैं, पर उसके पास कोई घर नहीं है, कोई एफडी नहीं है जिसको वो कोलैटरल करके जिसके अगेंस्ट वो लोन ले। अब हम वहां पहुंच रहे हैं। जब वो ब्रेक थ्रू आएगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बिल्कुल इनकलाबी होगा, और वहीं से आपके पास जो रिजल्ट्स निकलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बोल लीजिए, इनकम बोल लीजिए, बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो ऐसा लगता है कि ये कैसे हो जाएगा। पर आज से 3-4 साल पहले कहाँ हम वॉलेट इस्तेमाल करते थे, देखिए आज हम कहाँ पहुंच गए। यहाँ पर एक छोटा सा कह लें कि ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा सभी श्रोताओं का कि जब देश में जनधन अकाउंट खोले गए थे, यानी बेसिक अकाउंट खोला गया था हर उस लाभार्थी का जिसे सरकार से लाभ लेना था, तो उस समय ये समझना कठिन था कि इससे वास्तविक लाभ किस रूप में होगा, कैसे दिखेगा। लेकिन आधार, बैंक खाता और एक मोबाइल, इन तीनों ने जोड़ के कई स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव दिए हैं। वो हम साक्षी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि डेटा जब निकलकर सारे आएंगे तो एक व्यापक परिदृश्य बिल्कुल हाथ में होगा, आंवले के दाने की तरह। Right. And I think, Udin, you put it very beautifully when you said that the increase and the rate of increase is geometric in progression, not arithmetic. And even in economics, they say when it anything gathers a critical mass, then the momentum is definitely not in proportion to the last effort which has been put in. Right. And I think we are probably approaching that point. Yeah. We move on to our next story. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that logistics have become the centerpiece of India's policy making in its journey towards becoming a developed nation. He said that the express delivery of services has transformed through innovative ideas. Mr. Goyal said this while releasing a report on express delivery services in New Delhi today. He noted that scale, efficiency and building blocks through technology must be utilized to bring down the cost in logistics. Udayan, we spoke of accessibility, availability, alacrity, turnaround time. You said everybody reaching the last mile. And do you think that we've really made huge strides in logistics? Yes, we are making it's a work in progress, but it's worth pointing out that because of the what we have gone through in the last 2 years, the whole area of logistics has become front and center of economics now, because of the disruption that happened, and it is going through absolutely revolutionary changes. Whether it's you're shipping through containers, the way ports are managing it, whether it's trucking, how you keep inventories in a place, in a warehouse, and how you're delivering it. Then on the side, there is this whole e-commerce online business that's going in. So the bit of logistics, from the time you manufacture or create something to the point a person is using it and perhaps sending it back if he or she is not satisfied, it has completely changed. So in fact, comprehension is so like yes, absolutely. It's like out of the science fiction movies. If you see some of the warehouses, the way things are getting automated and digitized. So we are changing, and of course infrastructure is a key part. We don't have good roads, we can kiss logistics goodbye. So that is a huge amount of change that's happening. आइए अब चलें एशियाई घरेलू शेयर बाजार और कह लें दुनिया भर के शेयर बाजार की ओर।
घरेलू शेयर बाजार तो आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बंद रहे हैं। वैश्विक बाजारों पर ध्यान दें तो एशियाई बाजारों में हांगकांग को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजारों में लिवाली की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% फायदे के साथ बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.4% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% बढ़कर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.9% की तेजी आई। उधर हांगकांग का हैंग सेंग 0.3% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 0.6%, जर्मनी का डैक्स 0.9% और लंदन का FTSE 100 0.1% लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। The Dow Jones and the S&P 500 ended higher yesterday, lifted by energy stocks. Shares of energy-related companies climbed following surprise cuts to the OPEC Plus group oil's output targets. Yesterday, oil prices rose sharply after leading members of the OPEC and their allies, including Russia's announcement of cutting oil output by more than 1 million barrels a day from May until the end of the year. On the other hand, the Nasdaq index fell marginally amid plunge in Tesla shares after its electric vehicles deliveries for the first quarter disappointed investors. The Dow Jones Industrial Average rose 1% and the S&P 500 added 0.4%, while the Nasdaq Composite Index fell 0.3%. Oil prices today extended gains after OPEC Plus plans to cut more production, which jolted markets in the previous day. Investors' attention shifting to demand trends and the impact of higher prices on the global economy. In intraday trade, Brent crude was trading at around $85.60 per barrel, while West Texas Intermediate WTI crude prices were at $81.10 per barrel when reports last came in. उदयन जी, बाजार में जो तेल की गति है वह किस दिशा में जाती लग रही है और जो उत्पादन में कमी लाने का इरादा है ओपेक देशों का, वह किस हद तक हमारे लिए गंभीरता का कारण बन सकता है? बिल्कुल, आपने देखा कि कैसे 75 से शायद 81 तक पहुंच गया है। और सबसे जो डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि यहाँ पे जो रिवीजन, मतलब पंप में प्राइसेस की कमी की तरफ हम लोग आशा कर रहे थे, उसमें अब देरी होने ऐसा लग रहा है कि अब वक्त तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। और एक्चुअली ये एक विशियस साइकिल है, क्योंकि आप जैसे सप्लाई काट करके हाई प्राइस रखेंगे तो वो मुद्रास्फीति को तो का प्रेशर को तो वो बरकरार रखेगी। अगर वो बरकरार रखती है तो सेंट्रल बैंक्स टाइटन करते रहेंगे एट सम पॉइंट, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ को और नीचे गिराएगी। तो ये एक विशियस साइकिल हो जाता है। जब ऑयल प्राइसेस जब आपके मुद्रास्फीति को बढ़ाती हैं तो एक्चुअली वो आप खुद ही ऑयल के डिमांड को आप किल कर रहे हैं। तो ये तो उनको समझदार दिमाग लगा करके वो करना पड़ेगा। पर ये हम उस दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां पे बढ़ते हुए तेल के दाम या ऊंचे स्तर में तेल के दाम की वजह से एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि के दर में असर पड़ेगा। Quickly, Udayan, when we talk of our buffer stocks, and we do have, now we see prices are not volatile, but they're fluctuating, and this has been quite a fluctuate this time, this last increase that has happened. Do you feel that we need to somewhere revisit the buffer stocks that we have? Yeah, strategic reserves is a big thing, and we obviously need to build that up. But the question is, at what price do you go and get it, and what price is being offered? So the whole of last year, the whole story has been that we have been buying Russian oil, according to the Western media, right? But we also buy from Saudis, and we also buy from other sources. Now the question is, who's offering what to the others? People like us who are not experts are not privy to that. But the question, of course, even at a broader level is, at what point do you go and buy and store it? Even US has not been able to do it. They were thinking on that the prices will go down. They had, as you would recollect, they had released oil from the strategic reserves. Now the whole question is, when are they going to buy it? So when things are going up and down like this, it's like market timing. What is the right price? And you can never time the market. Yeah, and if you do a big buy or a reasonable buy, how do you justify if it falls? So when in a volatile market, it's like catching a falling knife. So it is a little difficult. It's not easy at all. यानी वो जो कहते हैं अंग्रेजी में कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो वास्तव में ये मामला थोड़ा जटिल है। बस इसी मोड़ पर कि हमारे जीवन की जटिलताएं कम हो हमारे निवेशकों के, आपको बहुत बहुत उदयन धन्यवाद हम देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज।
Thank you, Udayan. And now before we close, listeners, a quick reminder of the headlines. Gross direct tax collection registers 20% growth for 2022-23 fiscal, stands at 19.68 lakh crore rupees. Inflation in India to ease to 5.2% in current fiscal as per World Bank report. And Brent crude prices climb above $85 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.